رات کو ہرقل نے اپنے جرنیلوں اور مشیروں کو بلایا۔ کیا تمہیں معلوم ہے سرحد پر کیا ہو رہا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ مدینہ کی فوج 3 جگہوں پر آ گئی ہے۔ اپنی کسی سرحدی چوکی نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ کیا وہاں سب سوئے رہتے ہیں؟ کیا تم برداشت کر سکتے ہو کہ عرب کے چند ایک لٹیرے قبیلے تمہیں سرحدوں پر آ کر للکاریں؟ کیا تم ان کے ایک سالار کو اپنی طاقت نہیں دکھا چکے؟ وہ خوش قسمت تھا کہ نکل گیا، اب وہ زیادہ تعداد میں آئے ہیں، وہ مال غنیمت کے بھوکے ہیں۔ فوراً تیاری شروع کر دو، ان کا کوئی ایک آدمی اور کوئی گھوڑا یا اونٹ واپس نہ جائے۔ شام کے فوجوں کے کمانڈر نے کہا، شہنشاہ ہرقل، آپ اتنے ناتجربہ کار تو نہیں جیسی آپ نے بات کی ہے۔ اگر یہ معاملہ کچھ اور ہوتا تو ہم آپ کی تائید کرتے، لیکن یہ مسئلہ جنگی ہے، آپ جانتے ہیں کہ شکست کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ہرقل نے کہا، مجھے سبق نہیں مشورہ چاہیے۔ وہ کیا ہے جو میں نہیں جانتا؟ شہنشاہ سب کچھ جانتے ہیں، ایسی بات نہ کریں۔ جس نے فارس کے شہنشاہ اردشیر کی جان لے لی تھی، رومی فوج کے کمانڈر نے کہا، اس کی جنگی طاقت ہماری ٹکر کی تھی۔ آپ بھی اس فوج سے لڑ چکے ہیں، اس کے بعد آپ کو بھی عراق پر فوج کشی کی جرت نہیں ہوئی۔ اب فراز کے میدان میں ہمیں مسلمانوں کے خلاف فارسیوں کو اتحادی بنانا پڑا اور ہم نے عیسائی قبیلوں کو ساتھ ملایا، مگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیں شکست دے گئے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہمیں مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ کمانڈر نے کہا، نہیں شہنشاہ، اردشیر بھی مدائن میں بیٹھا ایسی ہی باتیں کرتا تھا جیسی آپ ہمس میں بیٹھے کرتے ہیں۔ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ فارسیوں کا انجام دیکھیں۔ مدائن کے محل اب بھی کھڑے ہیں لیکن مقبروں کی طرح۔ اردشیر نے پہلے پہل مسلمانوں کو عرب کے بدو اور ڈاکو کہا تھا۔ میں نے فارسیوں کی شکست کی چھان بین پوری تفصیل سے کی ہے۔ اردشیر کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے، کچل دو، مگر اس کا جو بھی جرنیل مسلمانوں کے مقابلے کو گیا وہ چلا گیا۔ مسلمان ان کے علاقوں پہ علاقے فتح کرتے آئے، حتیٰ کہ ان کے تیر مدائن میں گرنے لگے۔ اور شہنشاہ ہرقل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ مسلمان مذہبی جنون سے لڑتے ہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں۔ ہم زمین کے لیے لڑتے ہیں۔ مسلمان جنگ کو ایک عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ہم ان کے عقیدے کو سچا سمجھیں یا نہ سمجھیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شہنشاہ کو اس پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ مسلمان ہر میدان میں تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں، وہ جذبے اور جنگی چالوں کے زور پر لڑتے ہیں۔ فراز میں ہم نے اپنے فارسیوں کی اور عیسائیوں کی نفری کو اتنا زیادہ پھیلا دیا تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی نفری ہمارے پھیلاؤ میں آ کر گم ہو جاتی، لیکن مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ ہمارا پھیلاؤ سکڑ گیا اور ہم پٹ کر رہ گئے۔ دوسرے جرنیلوں نے بھی اسی طرح کے مشورے دیے اور ہرقل قائل ہو گیا کہ مسلمانوں کو طاقتور اور خطرناک دشمن سمجھ کر جنگی تیاری کی جائے۔ لیکن میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں کہ مسلمان جو کچھ ہی سال پہلے وجود میں آئے ہیں، عظیم سلطنت روم کو للکاریں۔ ہرقل نے کہا، ہمارے پاس ہماری صدیوں پرانی تاریخ ہے۔ رومیوں نے ساری دنیا پر دہشت طاری کیے رکھی ہے۔ ہمارا مذہب دیوتاؤں کا مذہب ہے۔ آسمانوں اور زمین پر ہمارے دیوتاؤں کی حکمرانی ہے۔ اسلام ایک انسان کا بنایا ہوا مذہب ہے جس کے پھیل جانے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی۔ میں صرف یہ حکم دوں گا کہ اس مذہب کے پیروکاروں کو اس طرح ختم کرو کہ اسلام کا نام لینے والا کوئی زندہ نہ رہے۔ اگلے ہی روز ہرقل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے ساتھ رومی فوج کی ٹکر ہوئی اور رومی فوج بڑی بری طرح پسپا ہوئی۔ یہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے دستے تھے جو تبوک کی طرف آگے بڑھے تو رومی فوج کے کچھ دستے ان کی راہ میں حائل ہو گئے۔ یہ شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھے جن کے ذمے سرحدوں کی دیکھ بھال کا کام تھا۔ عمر بن العاص بڑے ہوشیار سالار تھے۔ انہوں نے ایسی چال چلی کہ اپنے ہراول دستے کو دشمن سے ٹکر لینے کے لیے آگے بھیجا اور دشمن کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن شام کے عیسائی عربوں کے دستے تھوڑا سا نقصان اٹھا کر پسپا ہو گئے۔ عمر بن العاص ایلا کے مقام پر پہنچ گئے۔ یزید بن ابی سفیان بھی اپنے دستوں کے ساتھ ان سے آن ملے۔ جو ہی مدینہ کے لشکر کے یہ دونوں حصے اکٹھے ہوئے، روم کی فوج ان کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئی۔ مورخوں کے مطابق روم کی اس فوج کی نفری تقریباً اتنی ہی تھی جتنی کہ مسلمانوں کی تھی۔ اب 2 مسلمان سالار اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہوں نے رومیوں کے ساتھ آمنے سامنے کی ٹکر لی۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن قدم نہ جما سکے اور پسپا ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے ایک سوار دستے کو ان کے تعاقب میں بھیج دیا۔ رومیوں پر کچھ ایسی دہشت طاری ہو گئی تھی کہ وہ سوائے کٹ کٹ کے مرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکے۔ شہنشاہ ہرقل کو جب اپنے دستوں کی اس پسپائی کی اطلاع ملی تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے جرنیلوں کو ایک بار پھر بلایا اور حکم دیا کہ زیادہ سے زیادہ فوج اکٹھی کر کے شام کی سرحد کے باہر کسی جگہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑی جائے اور انہیں وہیں ختم کیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے ان جگہوں سے جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے چند آدمیوں کو اپنے زیر اثر لے لیا اور انہیں بے انداز انعام و اکرام کا لالچ دیا، جس کے عوض وہ مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چند دنوں میں ہی وہ مطلوبہ خبریں لے آئے۔ ان کی رپورٹوں کے مطابق رومی جو فوج اکٹھی کر رہے تھے اس کی تعداد 1 لاکھ سے کچھ زیادہ تھی۔
इस फौज का एक हिस्सा अजनादीन की तरफ कूच कर रहा था। जासूसों ने ये इत्तला भी दी थी कि रूमी फैसला कुन जंग के लिए तैयार होकर आ रहे हैं। जासूसों ने तैयारियों की पूरी तफसील बयान की। अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ी अल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन ने यह हुक्म दिया था कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा लड़ना पड़े तो वो यानी अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु पूरे लश्कर के सालार होंगे। सूरत ऐसी पैदा हो गई थी कि लश्कर के चारों हिस्सों को इकट्ठा होना पड़ा। अबू उबैदा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूरे लश्कर की कमान ले ली, लेकिन लश्कर को मुकम्मल तौर पर एक जगह इकट्ठा न होने दिया। उसके साथ ही उन्होंने अमीरुल मोमिनीन को तेज रफ्तार कासिद के हाथ पैगाम भेजा जिसमें मुकम्मल सूरत हाल लिखी और ये भी कि रूमियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा होगी। ये थे वो हालात जिनके पेश नजर अमीरुल मोमिनीन ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को हुक्म भेजा था कि वो शाम की सरहद पर उस जगह पहुंचें जहां मदीना का लश्कर खैमजन है। इस हुक्म में ये भी लिखा था कि अपना लश्कर कुछ मुश्किलात में उलझ गया है। इस पैगाम ने खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को परेशान कर दिया था। ये बताया जा चुका है कि उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म के मुताबिक अपने लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा मुसन्ना बिन हारिसा के हवाले कर दिया। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फौज को फौरी कूच का हुक्म दे दिया। उन्होंने जब फासले का अंदाजा किया तो वो इतना ज्यादा था कि खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु को वहां पहुंचते बहुत दिन लग जाते। उन्हें डर था कि इतने दिन जाया हो गए तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। उन्हें यह भी मालूम था कि रूमियों की फौज फारसियों की निस्बत ज्यादा ताकतवर और बरतर है। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु इन रास्तों से वाकिफ थे। सीधा और आसान रास्ता बहुत तवील था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपने सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि बहुत जल्द पहुंचने के लिए उन्हें कोई रास्ता मालूम नहीं। सालारों में से किसी को छोटा रास्ता मालूम नहीं था। एक सालार ने कहा, अगर कोई छोटा रास्ता हुआ भी तो वो सफर के काबिल नहीं होगा। अगर किसी ऐसे रास्ते से 1-2 मुसाफिर गुजरते भी होंगे तो जरूरी नहीं कि वो रास्ता एक लश्कर के लिए गुजरने के काबिल हो। मैं एक आदमी को जानता हूँ, एक और सालार बोला, राफे बिन उमैरा। वो हमारे कबीले का जबरदस्त जंगजू है और मैंने देखा है कि खुदा ने उसे कोई ऐसी ताकत दी है कि वो जमीन के नीचे के भेद भी बता देता है। वो इस सहरा का भेदी है। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के हुक्म से राफे बिन उमैरा को बुलाया गया और उससे मंजिल बताकर पूछा गया कि छोटे से छोटा रास्ता कोई है। राफे ने कहा, जमीन है तो रास्ते भी हैं। ये मुसाफिर की हिम्मत पर मुनसिर है कि वो हर रास्ते पर चल सकता है या नहीं। तुम मंजिल तक किसी भी रास्ते से पहुंच सकते हो, लेकिन बाज रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर सांप भी नहीं रेंग सकता। मैं एक रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन ये नहीं बता सकता कि उससे लश्कर के कितने आदमी मंजिल तक पहुंचेंगे। और मैं ये भी बता सकता हूँ कि घोड़ा इस सहराई रास्ते से नहीं गुजर सकता। घोड़ा इतनी प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता और घोड़े के लिए पानी साथ ले जाया नहीं जा सकता। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अपना बनाया हुआ नक्शा उसके सामने रखा और पूछा कि वो कौन सा रास्ता बता रहा है। राफे बिन उमैरा ने नक्शे पर उंगली रखते हुए कहा, ये कराकर है। यहाँ एक नखलिस्तान है जो इतना सरसब्ज शादाब है कि मुसाफिरों पर अपना जादू तारी कर देता है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो सुआ को जाता है। सुआ में पानी इतना ज्यादा है कि सारा लश्कर और लश्कर के तमाम जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन ये पानी उसे मिलेगा जो सुआ तक जिंदा पहुंच जाएगा। ऊपर सूरज की तपिश देखो, दिन को कितना चल सकोगे, कितनी दूर तक चल सकोगे, ये मैं नहीं जानता। इतने ऊंट लाओ कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार हो। इब्ने वलीद, तुम सहरा के बेटे हो, मगर इस सहरा से नहीं गुजर सकोगे। राफे बिन उमैरा ने जो रास्ता बताया ये मौरखों की तहरीरों के मुताबिक 120 मील था। ये 120 मील का फासला तय करने से मंजिल तक कई दिन जल्दी पहुंचा जा सकता था। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु वो सालार थे जो मुश्किलात की तफसील सुनकर नहीं बल्कि मुश्किलात में पढ़कर अंदाजा किया करते थे कि उनकी शिद्दत कितनी कुछ है। उनके दिमाग में सिर्फ ये समाया हुआ था कि मदीना का लश्कर मुश्किल में है और उसकी मदद को पहुंचना है। सीधे रास्ते से फासला 600-700 मील बनता था। राफे के बताए हुए रास्ते से जाने से फासला कम रह जाता था, मगर राफे बताता था कि इस खतरनाक रास्ते से जाओ तो 5-6 दिन ऐसी दुश्वारियों से गुजरना पड़ता है जो इंसान क्या बर्दाश्त करेगा, घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पानी तो मिल ही नहीं सकता और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि महीना मई का था जब रेगिस्तान जल रहे होते हैं। एक सालार ने कहा, खुदा की कसम इब्ने वलीद, तू इतने बड़े लश्कर को इस रास्ते पर नहीं ले जाएगा जो तबाही का और बहुत बुरी मौत का रास्ता है। एक और सालार ने कहा, और जिसका दिमाग सही होगा वो इस रास्ते से नहीं जाएगा, हम उसी रास्ते से जाएंगे। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने ऐसी मुस्कुराहट से कहा जिसमें अजीब सी संजीदगी थी। राफे बिन उमैरा ने कहा, हम पर फर्ज है कि तेरी इताअत करें, लेकिन एक बार फिर सोच लें। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं हुक्म वो देता हूँ जो हुक्म अल्लाह मुझे देता है। हारते वो हैं जिनके इरादे कमजोर होते हैं। अल्लाह की खुशनूदी हमें हासिल है और फिर अल्लाह की राह में जो मुसीबतें आएंगी हम क्यों ना उन्हें भी बर्दाश्त करें। ये वाक़या और ये गुफ्तगू तबरी ने जरा तफसील से बयान की है। खालिद रज़ी अल्लाहु अन्हु के सालारों ने उनके अज़्म की ये पुख्तगी देखी
तो सब ने पुरजोश लहजे में लब्बैक कही। उनमें से किसी ने कहा, इब्न वलीद, तुझ पर अल्लाह का करम, वो कर जो तू बेहतर समझता है, हम तेरे साथ हैं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने इस सफर पर रवानगी से पहले एक हुक्म ये दिया कि लश्कर का हर फर्द ऊंट पर सवार होगा, घोड़े सवारों के बगैर पीछे पीछे चलेंगे। दूसरा हुक्म ये कि औरतें और बच्चों को मदीना भेज दिया जाए। सालारों को खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा था कि तमाम लश्कर को अच्छी तरह बता दें कि वो ऐसे रास्ते से जा रहे हैं जिस रास्ते पर पहले कभी कोई लश्कर नहीं गुजरा। हर किसी को ज़हनी तौर पर तैयार किया जाए। मई का महीना ऊंटों की फराहमी में गुजर गया। जून 634 ईस्वी रब्बिउल आखिर 13 हिजरी का महीना शुरू हो गया। अब तो सहरा जल रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। उनके साथ 9000 मुजाहिदीन थे जो इस खुदकुश सफर पर जा रहे थे। कराकर तक सफर वैसा ही था जैसा उस लश्कर का हर सफर हुआ करता था। वो सफर कराकर से शुरू होना था, जिसे मुसलमान मौरखों ने और यूरोपी मौरखों ने भी तारीख का सबसे खतरनाक और भयानक सफर लिखा है। मुसन्ना बिन हारिसा कराकर तक खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ गए। मुसन्ना को हैरा वापस आना था। कराकर से जिस कदर साथ पानी ले जाया जा सकता था, मशकीजों में भर लिया गया। मटके भी इकट्ठे कर लिए गए थे, इनमें भी पानी भर लिया गया। अगली सुबह जब लश्कर रवाना होने लगा तो मुसन्ना बिन हारिसा खालिद रजी अल्लाह अन्हु से और उसके सालारों से गले मिलने के लिए गए। याकूबी और इब्न यूसुफ ने लिखा है कि मुसन्ना बिन हारिसा पर रिक्कत तारी हो गई थी। उनके मुंह से कोई दुआ न निकली, आंखों से आंसू निकल आए। दुआएं उनके दिल में थी। उन्हें यकीन नहीं था कि वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु को और उनके 9000 मुजाहिदीन को फिर कभी देख सकेंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार होने लगे तो राफे बिन उमैरा दौड़ता आया। राफे ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु के दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, इब्न वलीद, अब भी सोच ले, रास्ता बदल ले, इतनी जानों से मत खेल। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्न उमैरा, अल्लाह तुझे गारत करे, मुझे अल्लाह की राह से मत रोक, या मुझे वो रास्ता बता जो मदीना के लश्कर तक जल्दी पहुंचा दे। तू नहीं जानता, तू हट जा मेरे सामने से और हुक्म मान जो मैंने दिया है। राफे खालिद रजी अल्लाह अन्हु के आगे से हट गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ऊंट पर सवार हुए और लश्कर चल पड़ा। सबसे आगे राफे का ऊंट था, उसे राहबरी करनी थी। मुसन्ना बिन हारिसा खड़े देखते रहे। उन्होंने अपने साथियों से कहा, अमीरुल मोमिनीन ने ठीक कहा था कि अब कोई माँ खालिद रजी अल्लाह अन्हु जैसा बेटा नहीं पैदा करेगी। वही सहरा जो रात को खुनक था, सूरज निकलते ही तपने लगा, और जब सूरज और ऊपर आया तो जमीन से पानी के रंग के शोले उठने लगे। पानी के रंग का झिलमिल करता एक पर्दा था जो आगे आगे चल रहा था। उसके आगे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या है। जून का सूरज जब सर पर आया तो लश्कर के अफराद एक दूसरे को पहचान नहीं सकते थे। हर कोई जमीन से उठती हुई तपिश के लरसते पर्दे में लरसता, कांपता या लटके हुए बारीक कपड़े की तरह, लहरों की तरह हिलता नजर आता था। मुजाहिदीन ने एक जंगी तराना मिलकर गाना शुरू कर दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उन्हें रोक दिया क्योंकि बोलने से प्यास बढ़ जाने का इम्कान था। ऊंट कई कई दिनों तक प्यासा सफर कर सकता है, लेकिन इंसान पैदल जा रहा हो या ऊंट या घोड़े पर सवार हो, वो चंद घंटों से ज्यादा प्यास बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहली शाम जब पड़ाव हुआ तो तमाम लोग पानी पर टूट पड़े। उनके जिस्म जल रहे थे। खाने की जगह भी उन्होंने पानी पी लिया। दूसरे दिन लश्कर का हर आदमी महसूस करने लगा कि ये वो सहरा नहीं जिसमें उन्होंने बेशुमार बार सफर किया है। ये तो जहन्नम है जिसमें वो चले जा रहे हैं। एक तो तपिश थी जो जला रही थी, दूसरे रेत की चमक थी जो आंखें नहीं खोलने देती थी। रेत का समंदर था बल्कि ये आग का समंदर था, और लश्कर शोलों में तैरता जा रहा था। तीसरे रोज का सफर इस तरह हौलनाक और अजियतनाक हो गया कि टीलों और नशेबो फराज का इलाका शुरू हो गया था। ये रेत और मिट्टी के टीले थे जो आग की दीवारों की मानंद थे। पहले तो लश्कर सीधा जा रहा था, अब थोड़े थोड़े फासले पर मुड़ना पड़ता था। दीवारों जैसे टीले मुजाहिदीन को जला रहे थे। यहाँ सबसे ज्यादा खतरा भटक जाने का था। बाज दीवारों जैसे टीलों के दरमियान जगह इतनी तंग थी कि ऊंट दोनों तरफ रगड़ खाकर गुजरते थे। ऊंट बिदक जाते थे कि उनके जिस्मों के साथ गर्म लोहा लगाया गया है। तीसरी शाम पड़ाव हुआ तो सबके मुंह खुले हुए थे और वो आपस में बात भी नहीं कर सकते थे। उस शाम लश्कर ने पानी पिया तो ये हौलनाक इंकशाफ हुआ कि बाकी सफर के लिए पानी नहीं रहा। पानी का जखीरा 5 दिनों के लिए काफी था, मगर ये तीसरे रोज ही खत्म हो गया। रास्ते में भी मुजाहिदीन पानी पीते थे। चौथा दिन कयामत से कम न था। पानी की एक बूंद नहीं थी। प्यास का असर जिस्मानी होता है और एक असर सहरा का अपना होता है जो जहन को बिगाड़ देता है। ये होती है वो कैफियत जब शराब नजर आने लगते हैं, पानी और नखलिस्तान दिखाई देते हैं, शहर और समंदरी जहाज नजर आते हैं और मुसाफिर उन्हें हकीकत समझते हैं। रेत की चमक का असर बड़ा ही खौफनाक था। लश्कर में से किसी ने चिल्लाकर कहा, वो पानी आ गया, पहले मैं पीऊंगा। वो आदमी चलते ऊंट से कूदकर एक तरफ दौड़ पड़ा।
3-4 मुजाहिदीन उसके पीछे गए। राफे बिन उमैरा ने दूर से कहा, इसे अल्लाह के सुपुर्द करो, सहरा ने कुर्बानियां वसूल करनी शुरू कर दी हैं, उसके पीछे मत दौड़ो, सब मरोगे। थोड़ी देर बाद एक मुजाहिद बेहोश होकर ऊंट से गिरा। वो उठा और ऊंट की तरफ आने की बजाय दूसरी तरफ चल पड़ा। कोई भी उसके पीछे न गया। पीछे न जाने की एक वजह यह भी थी कि सबकी आंखें बंद थीं। एक रेत की चमक और तपिश आंखें खोलने ही न देती थी। चौथा दिन जो पानी के बगैर गुजर रहा था, सही मायनों में जहन्नम के दिनों में से एक था। ऐसा लगता था जैसे सूरज और नीचे आ गया हो। पहले तो सब खुद आंखें बंद रखते थे क्योंकि चमक और तपिश आंखों को जलाती थी। अब आंखें खुलती ही नहीं थी। ऊंट तक हारने लगे थे। कोई ऊंट बड़ी खौफनाक आवाज निकालता, बैठने के लिए अगली टांगों को दोहरे करता और एक पहलू पर लुढ़क जाता। सवार भी गिरता मगर उसमें उठने की हिम्मत न होती। लश्कर में हर किसी की आंखें बंद थीं और दिमाग बेकार हो गए थे। उन्हें महसूस ही नहीं होता था कि उनका कोई साथी ऊंट से गिर पड़ा है या ये कि उसका ऊंट भी गिर पड़ा है और उसे उठाकर अपने साथ ऊंट पर बिठा लें। शराब का शिकार होने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। खुद खालिद रजी अल्लाह अन्हु की हालत ऐसी हो गई थी कि उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि लश्कर में क्या हो रहा है। वो तो अज़्म और ईमान की कुव्वत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी, और ये ऊंट थे जो चले जा रहे थे। अगर ऊंट रुक जाते तो लश्कर का कोई एक भी फर्द एक कदम न चल सकता। घोड़ों के मुंह खुल गए थे और जबानें लटक आई थीं। मुजाहिदीन की जबानें सूज गई थीं। हल्क में कांटे चुभ रहे थे, इस वजह से उनके मुंह भी खुल गए थे। वो तो अब लाशों की मानिंद हो गए थे। ऊंटों की पीठों पर अपने आप को संभाल नहीं सकते थे, इसीलिए उनमें से कोई न कोई गिर पड़ता था। अब वो आलमे नज़ा के करीब पहुंच रहे थे। जिस्मों की नमी खुश्क हो चुकी थी। रात को लश्कर रुका। तमाम रात मुजाहिदीन ने जागते गुजारी। जिस्मों के अंदर सुइयां चुभती थी। जबानों की हालत ऐसी थी जैसे मुंह में किसी ने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया हो। सफर के आखिरी दिन का सूरज तुलू होकर मुजाहिदीन को मौत का पैगाम देने लगा। कई मुजाहिदीन ऊंटों पर बेहोश हो गए। वो खुशकिस्मत थे जो लुढ़क कर गिरे नहीं। ये लश्कर अब एक लश्कर की तरह नहीं जा रहा था। ऊंट बिखर गए थे, बाज बहुत पीछे रह गए थे, कई दाएं और बाएं फैल गए थे। रफ्तार खतरनाक हद तक सुस्त हो गई थी। ये पानी के बगैर दूसरा दिन था और ये एक मौजज़ा था कि वो अभी तक जिंदा थे। कौन सी ताकत थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी? वो अल्लाह का वो पैगाम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, और ये मुजाहिदीन इंसानियत की निजात के लिए अल्लाह का ये पैगाम जमीन के गोशे गोशे तक फैलाने के लिए सहरा की आग में से गुजर रहे थे। अल्लाह ने उन्हें बड़ी ही अजियतनाक आजमाइश में डाल दिया था और उसी की जात उन्हें जिंदा रखे हुए थी। गुरूब आफ्ताब से बहुत पहले खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने ऊंट को राफे बिन उमैरा के ऊंट के करीब ले गए। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज जबान से निकाले, इब्ने उमैरा, क्या अब हमें इस चश्मे पर नहीं होना चाहिए था जिसका तूने जिक्र किया था? सुआ एक ही मंजिल दूर रह गया होगा। राफे बिन उमैरा ने कहा, अल्लाह तुझे सलामत रखे वलीद के बेटे। मैं आशुब चश्म का मरीज था। इस सहरा ने मेरी आंखों का नूर खत्म कर दिया है। मैं अब कैसे देखूं? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने घबराई हुई आवाज में पूछा, क्या तू अंधा हो गया है? जो तू देख सकता था वो हम में से कोई भी नहीं देख सकता। क्या हम भटक गए हैं? मौरिख वाक़िदी और तबरी ने लिखा है कि राफे बिन उमैरा की बीनाई खत्म हो गई थी। उसने जहन में कुछ हिसाब रखा हुआ था। इन दोनों मौरिखों ने उसके सही अल्फाज अपनी तहरीरों में नकल किए हैं। राफे ने कहा, इब्ने वलीद, लश्कर यहीं रोक ले, अपने कुछ आदमियों को आगे भेज, उन्हें कह कि वो औरतों के पिस्तानों की शक्ल के 2 टीलों को तलाश करें। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कुछ आदमियों को आगे भेज दिया। ये आदमी जल्द ही वापस आए और उन्होंने बताया कि वो 2 टीले देख आए हैं। राफे ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि अल्लाह के करम से वो सही रास्ते पर जा रहे हैं, लश्कर को आगे ले चलो। राफे बिन उमैरा ने कहा, इब्ने वलीद, अब अपने आदमियों से कह दे कि एक दरख्त को ढूंढें जिस पर कांटे ही कांटे होंगे और वो दरख्त ऊंचा दरख्त नहीं होगा। वो दूर से इस तरह नजर आएगा जैसे कोई आदमी बैठा हुआ हो। ये दरख्त उन 2 टीलों के दरमियान होगा। आदमी घूम फिर कर वापस आ गए और उन्होंने ये जानकर खबर सुनाई कि इन टीलों के दरमियान और इर्द गिर्द बल्कि दूर दूर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं है। राफे बिन उमैरा ने कहा, समझ लो कि हम सब मर गए। उसने कुछ सोचकर और कदरे झुंझला कर कहा, एक बार फिर जाओ, दरख्त मिल जाएगा, रेत के अंदर ढूंढो। आदमी फिर गए। बर्छियां और तलवारें रेत में मार मार कर मतलूबा दरख्त खोजने लगे। एक जगह उन्हें रेत की ढेरी नजर आई। रेत हटाई तो वहां एक दरख्त का टुंड-मुंड सा तना जाहिर हुआ। ये खारदार था। राफे ने कहा, उखाड़ दो इस दरख्त को और इस जगह से जमीन खोद दो। जमीन इतनी ज्यादा नहीं खोदी गई थी, लेकिन पानी उमड़ पड़ा और नदी की तरह बहने लगा। उस गड्ढे को खोद खोद कर खुला करते चले गए, हत्ता कि ये एक वसी तालाब बन गया। लश्कर के मुजाहिदीन इस पानी पर टूट पड़े। वाक़िदी लिखता है कि ये पानी इतना ज्यादा था कि इतने बड़े लश्कर ने पिया, फिर ऊंटों और घोड़ों ने पिया, तब भी ये उमड़ता रहा। मुजाहिदीन ने मशकीज़े भर लिए,
तब उन्हें ख्याल आया कि मालूम नहीं उनके कितने साथी पीछे रह गए हैं। ऊंट भी तरोताजा हो चुके थे और इंसान भी। अपने साथियों का ख्याल आते ही कई मुजाहिदीन ऊंटों पर सवार हुए और वापस चले गए। वो मंजर बड़ा हौलनाक था। जगह जगह कोई ना कोई मुजाहिद और कोई ऊंट या घोड़ा रेत पर बेहोश पड़े थे। मुजाहिदीन ने उनके मुंह में पानी डाला और उन्हें अपने साथ ले आए। बाज मुजाहिदीन शहीद हो चुके थे, उन्हें उनके साथियों ने वहीं दफना दिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने राफे बिन उमैरा को गले लगाकर कहा, इब्ने उमैरा, तूने लश्कर को बचा लिया है। राफे ने कहा, अल्लाह ने बचाया है इब्ने वलीद। मैं इस चश्मे पर सिर्फ एक बार आया था और ये 30 साल पहले का वाकया है। मैं उस वक्त कम सिन लड़का था और मेरा बाप मुझे अपने साथ लाया था। इस चश्मे को अब रेत ने छुपा लिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि यहाँ चश्मा मौजूद है। ये अल्लाह का खास करम है कि चश्मा मौजूद था। इन मुजाहिदीन की मुहिम इस सफर पर खत्म नहीं हुई थी। ये तो आजमाइश की एक कड़ी थी जिसमें से वो गुजर आए थे। उनका असल इम्तिहान अभी बाकी था। शाम की सरहद तक पहुंचने के लिए अभी 2 मंजिलें बाकी थीं, लेकिन वो कठिन नहीं थी। अभी मुश्किल ये थी कि रूमी उनके मुकाबले के लिए और उन्हें शाम की सरहदों से दूर ही खत्म करने के लिए इतनी ज्यादा फौज इकट्ठी कर रहे थे, जिसके मुकाबले में मुसलमानों की ये नफरी कोई हैसियत नहीं रखती थी।